Hello students, good evening. So in previous lecture we mainly discussed about Ohm's law, ohmic and non-ohmic conductors. We also studied how the resistance for a Ohm's law depends upon length, area and the factor like temperature. Okay, but in recent lecture we mainly discussed about the temperature dependence of resistance. Okay, so let's understand what is temperature dependence of resistance. So mainly it was observed in case of some conductor, semiconductor, insulator, that there is a greater dependence of temperature with resistance. Means the resistance of these substances varies largely with temperature. Especially if we consider conductor, then we find a conductor provides nearly extremely low resistance or extremely low resistivity when the temperature is decreased. Okay, means we can say at low temperature a conductor behaves like a superconductor. Okay, जेमती सुपरमैन लो कहानी सुनी थिबो सेमिति गोटे कंडक्टर कोन हुए ना लो टेम्परेचर रे तार कौन कौ टाइप बिहेवियर आसे ना सुपर कंडक्टर कहीं आम एमिंग करुचे ना बिकज ऑफ द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस कहीं जो टेम्परेचर लो करुचे देखुचे से कंडक्टर कौन हो जाऊँगी ना रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली डिक्रीज करी जाऊँगी एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस ऑफर करुच्ची. सो लो रेजिस्टेंस ऑफर हेले जो कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग कैपेसिटी बा चार्ज फ्लोर कैपेसिटी कौन हो जाऊँगी ना ग्रेजुअली इनक्रीज करी जाऊँगी. ओके, मेनली यही फैक्टर को नहीं कि आम कौन करवा ना स्टडी करवा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस. ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, देख पे सेम जिनटा को रेजिस्टिविटी भी नहीं पारे सेम टाइप एक्सप्रेशन बिकज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो मेजर कर गोटे रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है तार आम यूनिट लेंथ को जो मेजर कर दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. ओके, देख जो सपोज जेकोसी गोटे कंडक्टर हो सेमीकंडक्टर हो इन्सुलेटर हो से केस रे सपोज आम गोटे रेजिस्टेंस को मेजर कर सपोज R0 बी द रेजिस्टेंस एट T इक्वल टू 0 केल्विन. सपोज आई कंसीडर एब्सोल्यूट 0 केल्विन. द वैल्यू ऑफ resistance present in case of substance like R0. Okay, and if I take the resistance that is RT at certain temperature, suppose T equal to T Kelvin. Okay, at T equal to T Kelvin the temperature of the resistance of that substance will be R of T. Okay, then we find there is a basic relation exist in between resistance at low temperature and resistance at certain temperature, and that relation indicates that the relation between R0 and R0 is R0 equals to. Okay, if we measure the resistance at absolute 0 temperature, the absolute 0 temperature the resistance will be varies like it resistance at certain temperature is equal to R0 1 plus alpha T. Okay, R equal to R0 1 plus alpha T. Okay, देखो ये जो हमें फैक्टर नौचे that is R of T, that is resistance at temperature T Kelvin, R0 that is the resistance of that substance at absolute 0 temperature, then alpha that is called temperature coefficient. Okay, temperature coefficient of resistance. Okay, so if we measure the temperature coefficient of resistance, that alpha equals to R of T minus R of 0 divided by R0 T. Okay, so that will give alpha equal to R of T minus R of 0 divided by R of T minus R of 0 divided by R0 T. But तुम रेजिस्टिविटी टर्म्स रे लिखिबो ताको मो सपोज अल्फा बार नहीं जाउची अल्फा बार केस रे लिखि परिबी रो ऑफ T minus रो ऑफ 0 divided by रो 0 T. ओके, रो 0 T को डिफरेंट बुक रे कौन लिखे ना डेल्टा T भी मेंशन होता है. डेल्टा T कहीं आम कहे ना टेम्परेचर जेहेतु आम चेंजेस करुचे T इक्वल टू 0 रु T इक्वल टू सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जाए तो डेल्टा T टाक आम ये टाइप नहीं पार T1 माइनस T2.
T1 minus T2 sorry change of temperature that is T2 minus T1 T2 minus T1 टा जैसे हमें change of temperature नौचे initial temperature 0 Kelvin नहीं ची so that's why ये हमें लिखु जे T minus 0 that equals to T बुझिएला पिले ताले जो रिलेशनटा में पाइले टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ओके अल्फा दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ओके तो हम कहूँ मेजरमेंट कौन कहार ना मेनली हम कोफिशिएंट फैक्टर कहूँ यहाँ कौन कह जाए ना टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फाटा को कौन कहूँ जनरली दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ओके एबे देखिबा पिले जो कंडक्टर केस रे केमिति आसुची सेमीकंडक्टर केस रे केमिति आसुची और इन्सुलेटर केस रे केमिति आसुची माने करो मु कंडक्टर केस को मेजर करबी ओके जदि हम कंडक्टर केस को नहीं मेजर करबा इन केस ऑफ कंडक्टर इट वाज ऑब्जर्व दैट इफ द टेम्परेचर वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर जदि हम गोटे कंडक्टर टेम्परेचर को इंक्रीज करबा केस 1 सपोज इट नहीं गली मेटल्स नहीं गली मेटल्स बेसिकली कहा ऊपर कंसीडर करी ना कंडक्टर ऊपर ओके जब हम कंडक्टर्स को कंसीडर करवा जनरली इट वाज फाउंड दैट इन केस ऑफ कंडक्टर द टेम्परेचर व्हेन इंक्रीज देन इट्स रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस मीन्स एट हाई टेम्परेचर आर ऑफ टी ग्रेटर देन आर ऑफ 0 ओके देख पिले जो आम टेम्परेचर इनक्रीज करवा ताले से केस मोर कौन आसूची ना रेजिस्टेंस भी मोर इनक्रीज कर ओके टी इक्वल टू 0 केल्विन रू जब टी इक्वल टू सर्टेन टेम्परेचर को आम मूवमेंट करूचे ताले रेजिस्टेंस कौन आसूची ना इनक्रीज आसूची सो एज द रेजिस्टेंस इनक्रीजेस सो ये कौन हो पार पिले देख जदि मोर नेगेटिव रिलेशन को ऑब्जर्व करी ताले मोर कौन आसूची आर ऑफ टी और आर ऑफ 0 भितर आर ऑफ टी और आर ऑफ 0 केस रे कौन आसूची ना अल्फार वैल्यू जो आसूची अल्फा इक्वल टू आसी जीवो पॉजिटिव अल्फा इक्वल टू कौन आसी जीवो पॉजिटिव कहीं नेगेटिव रिलेशन अच्छी विथ ए ग्रेटर आर ऑफ टी सो अल्फा इक्वल टू पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा विल एराइज इन केस ऑफ कंडक्टर ताले कंडक्टर केस रे आम जो अल्फा बा टेम्परेचर कोफिशिएंट रो वैल्यू पाउचे द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव ओके सो वी कैन से एज द टेम्परेचर इंक्रीज्ड as the temperature of a conductor increase its resistance also increases and firstly when I take as the temperature of the conductor decreased then its resistance also very small and at that condition it behaves as a superconductor okay later we discuss what is superconductor so superconductor that is a metal having or the conductor having zero electrical resistivity or zero electrical resistance that behave as a superconductor okay so बुझेला पिले ताले इन केस ऑफ मेटल आम कहे टेम्परेचर बढ़ेले रेजिस्टेंस बढ़ो जेहेतु रेजिस्टेंस बढ़ुची ताले मोर अल्फा कौन आसला पॉजिटिव केस 2 नवा कहा केस रे ना केस 2 मेजर करबा सेमीकंडक्टर केस रे ओके सेमीकंडक्टर केस रे कौन आसे पिले ना सेमीकंडक्टर केस रे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑब्जर्व करबा सेमीकंडक्टर केस रे फ्री इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबिलिटी थाए रूम टेम्परेचर बा लो टेम्परेचर रे जनरली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लेस थाए सेमीकंडक्टर केस रे जब हम सही मेटल टेम्परेचर को हम इंक्रीज करबा जो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इंक्रीज करे जेहेतु फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इंक्रीज करूची ता माने तार जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैपेसिटी कंडक्टर कौन सेमीकंडक्टर रे इंक्रीज करी जाए ता माने एठी कोन आसुची ना एट लो टेम्परेचर इट ऑफर्स more resistance okay as compared to the high temperature so that's why in case of semiconductor the temperature at lower state or the resistance corresponding to low temperature is greater than the resistance corresponding to high temperature okay त माने लो टेम्परेचर मोर जति के रेजिस्टेंस आसीबो हाई टेम्परेचर रे रेजिस्टेंस एज कंपेयर कम आसीबो जदि हम R0 ग्रेटर देन RT नोचे इटी पहिले ऑब्जर्व करो जदि मोर R0 टा ग्रेटर आसुची त लो टेम्परेचर जदि रेजिस्टेंस
हाई आसूची ताले अल्फा रो वैल्यू जो आसीबो अल्फाटा कोन हिजबो पिले नेगेटिव ओके सो सेमीकंडक्टर केस रे जो अल्फा रो वैल्यू आसूची सो अल्फा बिकम्स नेगेटिव व्हाट डज इट इंडिकेट्स as the temperature of a semiconductor increase then its electrical conduction power increases with a decrease in value of electrical resistance okay and if we take the third case like insulator case 3 in case of insulator there is a no dependence of temperature on resistance okay because in such case resistance at low temperature is equal to resistance at high temperature okay त माने resistance रो dependence जदि हम ऑब्जर्व करबा लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर केस रे there is no dependence okay so as resistance of the substance does not change with the temperature so that's why if r of t equal to r of 0 पिले एठी कोन हे जिवो ना अल्फा रो वैल्यू हे जिवो 0 alpha becomes 0 so in case of insulator the temperature coefficient of electrical resistance becomes 0 and in case of semiconductor that is negative and in case of conductor that is positive okay so these are the three different values of a temperature coefficient of electrical resistance देखो पहले जदि एटा तुम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रे भी मागुची तले रेजिस्टिविटी रे सिंपली मोर जो टर्म्स आसीबो अल्फा बार ओके अल्फा बार पॉजिटिव आसीबो को केस रे ना मेटल बा कंडक्टर केस रे अल्फा बार मोर नेगेटिव आसला को केस रे ना सेमीकंडक्टर केस रे अल्फा बार टा मोर 0 हे जिवो को केस रे ना इंसुलेटर केस रे सेम टाइप रो वेरिएशन ओके ओके देन सेकंड फैक्टर हमें मेनली मेजर करिबा जो देख पे आम कैपेसिटेंस रो सीरीज पैरेलल कनेक्शन को ऑब्जर्व करिछे एबे देखबा जो रेजिस्टेंस हम लास्ट क्लास रो पढितले गोटे कांस्टेंट रेजिस्टेंस आ गोटे वेरिएबल रेजिस्टेंस गोटे सर्किट रे जदि हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दउचे त माने जो रेजिस्टर रो रेजिस्टेंस नैतले R एटा हला हमर कांस्टेंट रेजिस्टेंस अछि R जदि वेरिएबल रेजिस्टर कंसीडर करबी तले एटा हला हमर गोटे वेरिएबल रेजिस्टर ओके वेरिएबल कहीं कहूँ ना जेहेतु यार इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रेगुलरली चेंजेस आसीबो ओके दैट्स व्हाई इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड दिस इज अ कांस्टेंट रेजिस्टर ओके और ए रेजिस्टर प्रोवाइडिंग कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओके आम प्रीवियस चैप्टर रे जो कैपेसिटेंस जो पढ़ी से केस रे आम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को ऑब्जर्व करथिले ओके कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर को नहींचे एठी कोन मेजर करबा से सेम टाइप रो केसेस ऑब्जर्व करबा जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओके टिके से पाठ को टिके रिवाइज कर दबा जे केमिति हमें कंसीडर करथिले जब आम सीरीज कनेक्शन नहीं कैपेसिटर केस रे पिले से कौन हुए ना सीरीज कनेक्शन माने गोटे वायर ऊपर आम डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर को डिफरेंट कैपेसिटर को कनेक्ट करथिले जोटी मोर होची सीरीज केस रे गोटे कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड होबो थ्रू आउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बट देयर इज ए चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ ईच कैपेसिटर ओके सेकंड थिंग जब हम पैरेलल नहीं पिले पैरेलल केस रे कौन हुए ना गोटे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रे चार्ज डिविजन एक्जिस्ट हुए कहीं ना आम गोटे सिंगल वायर को डिफरेंट पोर्शन बा डिफरेंट पार्ट रे आम डिवाइड करूँ जो डिफरेंट पार्ट रे बा डिफरेंट कनेक्शन रे आम डिवाइड करूचे ना से केस रे कौन हुए ना इलेक्ट्रिकल चार्ज टा डिवाइड हो जाए एठी भी आम सही कॉन्सेप्ट यूज करबा बट टिके एडवांस वर्जन रे जेरा हम कहूचे कौन ना चार्ज पर यूनिट टाइम की नहीं जावा जेटा कि हमें आसला करेंट रो ओके कहीं रेजिस्टर रे मोर कौन प्रोवाइड होबो ना रेजिस्टर रे फ्लो होबो इलेक्ट्रिक करेंट ओके इलेक्ट्रिक करेंट रो फ्लो को जो कंसीडर करछे सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओके ओके सो फर्स्ट आम नवा कौन ना सीरीज कनेक्शन देख पिले बहुत इजी आसीबो सीरीज कनेक्शन को आम नवा पूर्व जो ओम्स लॉ रे टिके रिलेशन को मन पकवा पिले ओम्स लॉ केते आस्तिला ना V इक्वल टू IR ओम्स लॉ इक्वल टू केते पाइतिलो V इक्वल टू IR V टा हला मोर कोन ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर I टा नैतिले करंट फ्लोइंग दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज फॉर यूनिट टाइम ओके
आर नहीं कौन पिले आरटा हूँ मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ओके सपोज आम सीरीज कनेक्शन केस रे कौन करवा माने कर ए लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ओके आर कनेक्टेड ओवर ए सिंगल वायर ओके एंड ऑल द वायर्स आर कनेक्टेड टू ए सोर्स जो वायर्सटा आमर अच्छी से सोर्स गुड़ा प्रोवाइड करदा जोटा कि आम करेन्ट फ्लो कर ओके मनकर से सोर्स रो जो पोटेंशियल डिफरेंस आसूची पोटेंशियल डिफरेंस है वी पोटेंशियल डिफरेंस भी ता माने कौन पिले मनकर ये जो दीटा एंड नहीं गली ये जो दीटा एंड नहीं गली ताले एंड भीतर मोर पोटेंशियल डिफरेंस आसला केते वी ओके तमाने इमेजिन करनी गोटे ए एंड आ गोटे हला मोर बी एंड ओके ए एंड आ बी एंड भीतर मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मेशन होची से पोटेंशियल डिफरेंसटा कोन अछि बिले वी अछि ओके मनकर मोर एठी जो करंट फ्लो होची जो करंट फ्लो होची सपोज से करंट हला मोर आई करंट फ्लो होची आई जो रेजिस्टेंस गुड़ाक अच्छी मनकर R1 अच्छी R2 अच्छी R3 अच्छी ये टाइप मोर Rn n टा रेजिस्टर कनेक्ट होइजे ओवर ए सिंगल वायर इन सीरीज कनेक्शन ओके but as the charge flow through the resistors ओके देख पिले जिते चार्ज मोर फ्लो हम रेजिस्टर मध्य ये कौन हम ना चार्ज फ्लोटा स्लो होदी चार्ज फ्लो स्लो हो जाऊँगी डेफिनेटली यही एंड रे मोर जो पोटेंशियल डिफरेंस एंड रे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड रे डेफिनेटली तार पोटेंशियल डिफरेंसटा चेंजेस आसीज जो पोटेंशियल वेरिएशन आसीज माने मोर ये जो पोटेंशियल आसला रेजिस्टर रेजिस्टर 1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है मोर V1 रेजिस्टर 2 सेकेंड रेजिस्टर मनकर पोटेंशियल डिफरेंस है केते पिले V2 थर्ड रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है V3 सेमती n रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस है मोर Vn ओके किंतु पिला माने जब ऑब्जर्व करिवा ए पॉइंट आ बी पॉइंट भितर मोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस केते अछि V अछि जो V टा कहा को नै कि नै जो V1 V2 V3 Vn ऊपर ही डिपेंड करूची सो नेट पोटेंशियलिटी केते लिखिबी ना नेट पोटेंशियल ओवर द सीरीज कनेक्शन दैट इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल रेजिस्टर्स ओके जो इंडिविजुअल रेजिस्टर आसला मोर फर्स्ट रेजिस्टर सेकंड रेजिस्टर थर्ड रेजिस्टर ये टाइप रे nth रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर डिपेंड करूची ओके दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द सीरीज कनेक्शन दैट इज द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल रेजिस्टर्स ओके किंतु पिला माने देखो जो आम सीरीज कनेक्शन नौचे तमें गोटे वायर उपर कनेक्ट होती सीरीज कनेक्शन तुम गोटे एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल नहीं पारे जो घरे दिवाली रे जो चुनी लाइट गुड़ा लगाओ जदि आम चुनी लाइट गोटे भी वायर कटि जाऊँगी कौन पर्सन रू ताल टोटाली चुनी लाइट जो कनेक्शनटा कौन हो जाए ना डैमेज हो जाए कहीं सबुड़ा मोर सीरीज कनेक्शन ताने जब मोर ये रेजिस्टरटा को मुझे करदेवी डैमेज ताने ये रेजिस्टर सब कट ऑफ हो कहीं करेन्टा फ्लो करना यही कनेक्शनटा जब आम डैमेज करदे ये रेजिस्टर डैमेज करदेवी तमें ये रेजिस्टर जब मोर करेन्ट पास न कर चार्ज फ्लो न हम सो डेफिनेटली यू जो रेजिस्टर्स अच्छी से ऑटोमेटिकली डेड होइजिवे ओके कहीं आम करेक्ट सीरीज कनेक्शन जो नौचे से गोटे कन्स्टाट करेन्ट उपर ऑपरेट करेंगे जोटा है आई तेल सीरीज कनेक्शन गोटे पॉइंट आम पाइले ऑल द रेजिस्टर्स आर मेंटेन ओवर ए कन्स्टाट करेन्ट ओके किंतु बोले ओम्स लॉ कौन कहूँ ओम्स लॉ कहूँ V इक्वल टू आई आर तमें फास्ट रेजिस्टर रे करेन्ट केते प्रोवाइड है आई करेन्ट प्रोवाइड है फास्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर रेजिस्टेंस केते अच्छी R1 अच्छी ओके ताले पोटेंशियल डिफरेंस V1 जगह केते लिखि परिबी V1 जगह लिखि परिबी मोर आई R1 केते लिखिबो पिले IR1 मने कर जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कौन मेजर करया पे चाहूचे ना टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ओके सपोज आई कंसीडर RS इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन ओके जदि इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन लो तमने से भी ऑपरेट हो को करंट ऊपर ना से सेम आई करंट ऊपर ऑपरेट हो ताहले पिले केते लिखि परिबी V जगह V टा में कहूँ टोटल पोटेंशियल नेट पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट सो दैट इक्वल टू IRS
Okay, IRS. RS is the effective resistance, or that is the total resistance in the series connection, that equal to V1, that is the potential difference of first resistor, that equals to केते पिले IR1 plus V2 टा केते आसीबो पिले similarly IR2 plus V3 जेतेबेले मेजर करूछु V3, that is IR3 plus dot dot IRN. बुझीगला पिले ना बुझीगलानी एबे कोन करबा देखो पिले ना कॉमन कोन अछि इक्वेशन कॉमन अछि करंट ओके जदि हम करंट को कैंसिल कर दो सो RS इक्वल टू केते आसिला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट केते हेगला पिले RN ओके बा जदि एटा जे कंटीन्यूअस फॉर्म रे जेतो अछि ताको जदि समेशन फॉर्मेट दे देबी केते हे जिवो पिले ना समेशन ओवर I दैट इज RI ओके ता माने लॉ ऑफ सीरीज कनेक्शन कौन कहूची ना लॉ ऑफ सीरीज कनेक्शन सेज द टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कनेक्शन इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस ड्यू टू इंडिविजुअल रेजिस्टर्स ओके इंडिविजुअल रेजिस्टर्स पाई जति कि भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आछि जदि हम तकु समेशन नै जिवा तले तार वैल्यू हे जिवो का सहित समान ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस सहित समान हे जिवो बुझियला पिले ना बुझियलानी एबे सेकंड केसटा ऑब्जर्व करिया जोटा हम कहूचे पैरेलल कनेक्शन ओके ताहले जते पैरेलल कनेक्शन मेजर करूचो पैरेलल कनेक्शन ले पिले कोन कहितली ना मोर डिवीजन आसीबो करंट रो डिवीजन आसीबो कहार पिले ना करंट रो ओके जते मोर इलेक्ट्रिकल सर्किट रो वायर कनेक्शन को चेंजेस कर दबा वायर कनेक्शन को चेंज कर दबा ता माने माने कर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट अछि गोटे सर्टेन पॉइंट रो जो सर्टेन पॉइंट मोर आसुची सेही पॉइंट रो कोन करबी ना वायर को स्प्लिट कर देबी फर्स्ट वायर सेकेंड वायर थर्ड वायर ये टाइप मोर एनएथ वायर फॉर्मेशन करी ओके ईच वायर रे गोटे एंड रे कौन करी बिले ना रेजिस्टर गोटे कनेक्ट कर देबी ओके और जति कि वायर्स अच्छी ताको कौन करबा ना गोटे कॉमन पॉइंट रे अगेन जॉइन कर दबा देखो पहले एठी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्मेशन होउची तले मन माकर मोर एठी हला पॉइंट ए एठी हला पॉइंट केते पिले बी पॉइंट ए पॉइंट बी ओके जो पॉइंट ए और पॉइंट बी भितरे जो मोर वायर डिवीजन आसी जे मन कर एठी आसीला रेजिस्टर गोटे लागि छि रेजिस्टेंस R1 एठी गोटे रेजिस्टर लागि छि रेजिस्टर हला कोन पिले R2 ओके एठी गोटे रेजिस्टर नै ता रेजिस्टेंस है R3 एठी रेजिस्टर अछि रेजिस्टेंस हो RN बुझिला पिले एबे कोन करिबा ना जो तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम गोटे कॉमन सोर्स सहित कनेक्ट करछे तार पोटेंशियल डिफरेंस अछि V तले A एंड और B एंड मध्य रे जो पोटेंशियल डिफरेंस ता क्रिएट हैला सेटा भी आसीला V ओके एबे कोन देखो पिले ना करंट केते फ्लो होउची I करंट ओके किंतु एठी गोटे जंक्शन पॉइंट आसीला जंक्शन पॉइंट रे वायर्स रो डिवीजन हेछि वायर्स रो डिवीजन हेछि जे तो वायर्स रो डिवीजन हेछि त माने जो करंट उडा डिवाइड हे गेला केते माने करे I1 एठी करंट डिवाइड हे गेला केते I2 एठी करंट आसीला केते पिले I3 एठी करंट पिले आसीला केते ना IN करंट ओके किंतु पिला माने एठी गोटे पॉइंट को ऑब्जर्व करो एठी मोर पोटेंशियल जहा आसीबो ए रेजिस्टर थ्रो रे ए पोटेंशियल ता देखो एठी जो वायर कनेक्शन ता अछि से वायर पॉइंट ता को मैं एठी भी नहीं पारिबी एई पॉइंट जो चॉइस करबी एई पॉइंट तुम माने पिला माने मझिर बेले बेले डाउट आसुजो मन रे जे एठी हमर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस काहे के हम होचे देखो एई जो पॉइंट ता को मैं ऑब्जर्व करी माने कर एई दुटा पॉइंट भीतर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करबी देखो एटा जेतो गोटे सिंगल वायर एठी पोटेंशियल जहा आसीबो एई पॉइंट रे भी पोटेंशियल सेम आसीबो एठी मोर पोटेंशियल जहा रहइबो एठी भी पोटेंशियल सेम आसीबो एटा भी पिला देखो सेही सेम वायर अछि एठी मोर पोटेंशियल जहा रहइबो एठी मोर पोटेंशियल भी सेम रहइबो
वायर गोटे नहीं वायर जब आम मेजर कर मोर पोटेंशियल जहाँ अच्छी सोर्स सहित जब गोटे कनेक्ट करी विथ द एलोंग इलेक्ट्रिकल एनी सर्किट ताले एठी मोर पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ रहिबो ए पॉइंट रे भी रहिबो ए पॉइंट रे भी सेम पोटेंशियल ए पॉइंट रे भी सेम पोटेंशियल त माने जो ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर पई जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होची से पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट द सर्किट कांस्टेंट रहिला थ्रू आउट द सर्किट कांस्टेंट रहिला त माने सबु रेजिस्टर रो जो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मेशन हबो से ए और बी भीतर ही एग्जिस्ट करिवो जेतु ए और बी भीतर मोर सर्किट रो पोटेंशियल डिफरेंस भी अछि त माने जते भी रेजिस्टर्स अछि पैरेलल कनेक्शन रे सबु रेजिस्टर गुडा गोटे कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऊपर वर्क करेंगे ओके बट पॉइंट इज टू रिमेंबर दैट द करंट इज डिवाइडेड जो पॉइंट को आम ये ऑब्जर्व कर कौन आसूची ना करेन्ट मोर डिवाइड होची करेन्ट मोर डिवाइड होची आई करेन्ट डिफरेंट वायर कनेक्शन पाई I1 I2 I3 IN पार्ट रे डिवाइड होची जो I1 करेन्ट मोर प्रोपागेट होची रेजिस्टर R1 भितर I2 करेन्ट प्रोपागेट है रेजिस्टर R2 भितर I3 करेन्ट R3 IN करेन्ट RN भितर ओके ओम्स लॉ को टिके पिले ऑब्जर्व करो ओम्स लॉ कहूची V इक्वल टू केते IR ओके किंतु इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब ऑब्जर्व करवा ये इलेक्ट्रिकल सर्किट रे पिले कोटा चेंजेस आसुची ना करेंट ओके सो नेट करेंट केते लिखि पारिबी टोटल करेंट I इक्वल टू सम ऑफ द करेंट पासिंग थ्रू द ईच रेजिस्टर्स ओके सो दैट इज I1 प्लस I2 प्लस केते पिले I3 प्लस डॉट डॉट केते ना IN बुझीगला पिले मन कर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट रो जो टोटल इफेक्टिकल टोटल रेजिस्टेंस जो आसूची मन कर सेटा मोर आरपी इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्यू टू पैरेलल कनेक्शन इफेक्टिव रेजिस्टेंस यदि नहीं जाऊँ ताले केते हो पिले कह ताले जो V इक्वल टू IR रिलेशन को टिके ऑब्जर्व कर जो V इक्वल टू IR रे जदि हम करंट को मेजर करबा दैट इज V/R किंतु जेहेतु सबू रेजिस्टर गुड़ा गोटे कांस्टेंट पोटेंशियल ऊपर ऑपरेट होची ताले जो मोर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आसीबो ताको लिखि परिबे केते पिले ना V/RP इक्वल टू दैट इज द टोटल करंट दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस एंड दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ओके I1 that is current passing through the first resistor is maintained over a potential difference V having resistance केते अछि R1 तो I1 को लिखि परिबे V/R1 प्लस I2 को केते लिखिबे पिले ना V/R2 प्लस डॉट डॉट V/R3 प्लस डॉट डॉट केते पाइलो पिले V/RN ओके ताले जो कॉमन टर्म टा अछि V सेटा कैंसिल कर दियो सो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1 बाय केते पाइले पिले R2 प्लस 1 बाय केते पिले R3 प्लस डॉट डॉट 1 बाय केते पिले ना RN ओके जदि को हम समेशन फॉर्मेट रे लिखि दबा ताले केते आसीबो ना 1/RP इक्वल टू समेशन ओवर I 1 बाय केते पिले RI समेशन ओवर I 1/RI ओके तब माने कौन इंडिकेट करूची द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस मोर केमिति रहउची ना रेसिप्रोकल फॉर्म रे ओके सो द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ और द रेसिप्रोकल अलजेब्रिक सम ऑफ the resistors or the reciprocal algebraic sum of the resistances due to individual resistors जो individual resistors रो जो resistance आछुची तार जो reciprocal रो algebraic sum ऊपर डिपेंड करूची so that is the law of parallel connection बुझियला पिले ए law of series और law of parallel connection को बेस करी कि भाई जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हमें नहीं कि सपोज मेजर करबा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हाउस वायरिंग गुडा कनेक्शन करूचे से हाउस वायरिंग केस रे हम गोटे थिंग को मेजर करू जोटा होची इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा को मेजर करू ना इलेक्ट्रिक एनर्जी को ओके व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड हाउ कैन वी प्रोवाइड some money by using the electric energy आमे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी टा यूज करूछु से इलेक्ट्रिक एनर्जी रो जो आमे
जो घरे तुम इलेक्ट्रिक बिलटा प्रोवाइड करुच कौ बेसीस आम प्रोवाइड करुचे कौ बेसीस प्रोवाइड करुचे ओके। तो फर्स्ट देखा आम इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन तापर देखा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आम यूज करुचे तार कॉस्टिंग प्राइस टाक आम केमी प्रोवाइड करुच ओके। इलेक्ट्रिक एनर्जी ओके देख पे इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर जो मेजर करूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी बा इलेक्ट्रिक पावर मेन आम कौन मेजर करूँ ना अमाउंट ऑफ वर्क डन ओके। एनर्जी पिला माने कॉन्सेप्ट जानिछ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बट ये वर्क डन कहाँ आसीबो जो वर्क डन आम मेजर कर वर्क डन कहाँ आसीबो ना गोटे करेन्ट जो फ्लो होची इलेक्ट्रिकल सर्किट रो ओके इलेक्ट्रिकल सर्किट रो सो मेनली दैट इज द work done by flowing some current through an electrical circuit is known as electric energy okay। so जो वर्क डन को मेजर करुचे पिला माने वर्क डन के कहार आसूची ना चार्ज रो ओके जो वर्क डन को मेजर कर मोर वर्क करुच्ची किए फ्लो होची किए ना चार्ज चार्ज फ्लो हेले ही मोर आसीबो कहार वैल्यू ना करेन्ट रो वैल्यू आसीबो ओके। सो जनरल इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्लोइंग ए इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ओके। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट रे हमें चार्ज फ्लो करेन्ट फ्लो करुचे से करेन्ट फ्लो पई जति वर्क डन आसूची सेटा को हमें मेनली कहूचे इलेक्ट्रिक एनर्जी किंतु पिला माने जतले हम चार्ज फ्लो करुचे सेठी मोर मेजर कहार आसूची करेन्ट जेटा हम कहूचे I इक्वल टू केते पिले ना Q बाई टी I इक्वल टू केते ना Q बाई टी ओके। सो दैट इक्वल्स टू Q इक्वल टू केते पाइल पिले ना I टी Q इक्वल टू I टी द चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करेन्ट विथ द टाइम बुझीगला पिले किंतु जो मेजर कर वर्क डन कॉन्सेप्ट पिले केते आसीबो चार्ज रो फ्लो केते रहिबो आमे कहूचे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चैप्टर रे जदि मोर गोटे हायर पोटेंशियल रीजन अच्छी आ गोटे लोअर पोटेंशियल रीजन अच्छी ताले से केस रे मोर चार्ज रो फ्लो आसीबो जोटा कि आमे मेंटेन करछे थ्रू ए सोर्स ओके। तमने गोटे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को जिते गोटे इलेक्ट्रिकल सोर्स सहित कनेक्ट करुचे तमें से मोर पोटेंशियल डिफरेंस आसला जो पोटेंशियल डिफरेंस पाई इलेक्ट्रिक चार्जटा मोर फ्लो है ओके। तमाने जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड न करी से पर्यटन मोर चार्ज रो फ्लो आसीबो नाही ओके। जो चार्ज रो फ्लो आसीबो बा चार्ज रो जो मोमेंट आसीबो कंडक्टर रे आमे इनिशियली ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहिजे तार एवरेज वेलोसिटी हो जीरो ओके। तो मैंने चार्ज रो गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्लो पाई कौन दरकार ना गोटे सोर्स रो कनेक्शन दरकार जोटी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करिवो ओके। ताले पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड हेले कौन हुए ना वर्क डन आसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड हेले चार्ज रो जो रीजनटा आसीबा चार्ज रो जो मोमेंटटा पॉसिबल आसीबो आ चार्ज रो मोमेंट पॉसिबल हेले हम कहूचे दैट इज देयर विल बी फ्लो ऑफ सम इलेक्ट्रिक एनर्जी ओके। सो ताल देखो पिले मने करो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट रे हम कहूचे कोन ना V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बीटा को कौन कहचे ना V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी सम वर्क दैट इक्वल टू W W इज द वर्क डन बाय मूविंग Q अमाउंट ऑफ चार्ज केते चार्ज फ्लो करबा पिले ना Q अमाउंट ऑफ चार्ज एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये वर्क डन टाक केते कहबा पिले ना इलेक्ट्रिक एनर्जी बोले कहबा ओके। इलेक्ट्रिक एनर्जी सिंपली तुम ई नहीं पारिबो ओके। इलेक्ट्रिक एनर्जी टा में ई सिंबल दउचे तुम चाहिए भी ताकू कौन करि पारिबो ना सिंपली यू सिंबल भी दे पारिबो ओके। इलेक्ट्रिक एनर्जी मोर सपोज आसला यू सॉरी ई ओके। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्लोइंग इलेक्ट्रिक current through an electrical circuit okay। suppose I provide I amount of current through an electrical circuit okay। I amount of current means there is a flow of Q amount of charge per unit time okay। so the total charge equal to current times the total time। so if V is the potential difference then we can write V equal to W by Q
Okay, if V is the potential difference, then potential difference equal to work done per unit charge. Okay, so work done equal to potential difference times the charge. Okay, and that work done is equal to electric energy, that equals to kete paile pile E. So that implies to E equal to देखो पिले केते लिखि परिबी V जगह रे लिखि परिबा V Q जगह रे लिखिले केते पिले IT Q जगह रे केते लिखिले IT. So E equal to केते पाइलो ना VIT, E equal to VIT. So E equal to VIT, that will provide the electric energy. Okay, एठी जदि मेजर करिबा यूनिट, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आम यूनिट नौचे, सो मेनली आम जूल कॉन्सेप्ट रे ही यूज करबा. इलेक्ट्रिक एनर्जी को कौन कहूचे, दैट इज मेजर बाय द यूनिट जूल. सो ई इक्वल टू पाइलो पिले VIT, ई इक्वल टू केते पिले VIT. किंतु देखो पिले आउरी गोटे तुम यूनिट दे पारिबो, एठी देखो पिले हम कहूचे कौन वोल्ट. ओके, करंट हैला कौन एम्पियर, आ गोटे कौन आसला टाइम सेकेंड. सो VAS. ओके, VAS is the other unit of electric energy. बुझेला पिले एट जदि गोटे एक्सप्रेशन यूज करवा V इक्वल टू IR कॉन्सेप्ट डिफरेंट टर्म्स वाइज यूज करवा. जो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी अच्छी मोर पोटेंशियल डिफरेंस करेंट आउ टाइम ऊपर डिपेंड करुच्ची. ओके, जब ये आम कन्वर्ट करदे V इक्वल टू IR को, जो कंडक्टरटा आम नहींचे, जो कंडक्टर रे चार्ज प्रोवाइड हो मनकर से कंडक्टर रेजिस्टेंस अच्छी R, रेजिस्टेंस अच्छी R, ताले तार जो पोटेंशियल डिफरेंस आसीबो V इक्वल टू केते आसीबो पिले IR आसीबो. तेनु V इक्वल टू VIT जगह V जगह लिखिदेली IR इंटू केते रहिला पिले IT. सो दैट विल गिव्स that is I square RT, I square RT. So electric energy that equals to square of current times resistance with time. बुझेला पिले आहुरी भी हम एक्सप्रेशन लिखि परिबा. सपोज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस न करिकी जो वेरिएशन अच्छी, जो टाइम रो जो वेरिएशन अच्छी, से टाइम रो वेरिएशन को हमें चेंजेस कर देबा. कहा को चेंजेस करबा ना टाइम रो वेरिएशन बा तुम एठी करंट जो एक्सप्रेशन अच्छी, करंट रो एक्सप्रेशन को माने चेंज कर देबी. देखो पहले I इक्वल टू केते लिखि परिबी V/R, I इक्वल टू V/R. सो E इक्वल टू केते हे गला पिले ना V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इनटू केते पाइलो RT. सो दैट इक्वल्स टू E इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इनटू केते पाइलो पिले T, V स्क्वायर बाय R इनटू T. ओके, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कौन पाइले ना डिफरेंट फॉर्म में पाइले E इक्वल टू VIT, E इक्वल टू केते पिले VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू V square by R into T. So these are the different expression of electric energy. Okay, and main unit of electric energy is that is joule, or we can express that is volt, ampere with second, and also we can express corresponding units. Okay, corresponding here that is the ampere square, ohm with second. Okay, here also you can say that is the volt square second with ohm inverse. बुझीगला पिले ये टाइप डिफरेंट यूनिट्स तुमको भी से सब्जेक्ट करि पारिबो. बुझीगला एबे कोन मेजर करबा ना इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर. ओके, जेतले तुम इलेक्ट्रिक बॉल आनिबा को जाउछो बा कोनोसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आनिबा कहीं जाउछो बा कोनोसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आनिबा पई जाउछो, देखिबो सेतरे पिले गुटे पावर रो देई थाए, जे पावर देइथो एटी कंज्यूम्स एति की इलेक्ट्रिक पावर, ता जो इलेक्ट्रिकल पावर रो जा यूनिट टाइम रे केते एनर्जी कंज्यूम करिवो से कॉन्सेप्ट ऊपर देइथबो, जेटा हम कहू जे इलेक्ट्रिक पावर. Electric power, that is most important. So what is electric power? Okay, electric power is a measure of consumption of electric energy per unit time by any electrical instrument. Okay, गोटे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट केते इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करछु गोटे सेकेंड रे, तार मेजर को हमें कहूचे इलेक्ट्रिक पावर. ओके, सो इलेक्ट्रिक पावर इज
absorption of electric energy per unit time or consumption of electric energy per unit time. Okay, so general electric power, there is taken a symbol P, taken a symbol P. Okay, so P equal to measure of electric energy or consumption of electric energy by an electrical instrument per unit time, per unit time. Okay, that is called electric power. So P equal to केते पाइलो पिले E by T. जदि आम स्मॉल चेंजेस फॉर्म रे लिखिबा, स्मॉल चेंजेस फॉर्म रे P equal to पिले लिखि परिबो DE by DT, DE by DT. किंतु इलेक्ट्रिक एनर्जी को गोटे कॉन्सेप्ट तुमको कहली, दैट इज द वर्क डन. केते कहली पिले वर्क डन. P equal to आम लिखि परिबो वर्क डन per unit time. Work done per unit time is also known as electric power. Okay, so that also written as dW divided by dt. Work done per unit time is known as electric power. Okay, so P equal to केते पाइलो पिले E by T और that is W by T. W रा यूनिट कौन पिले, यूनिट जदि मेजर करिबा यूनिट कौन आसीबो ना जूल सेकेंड इनवर्स, जूल सेकेंड इनवर्स. ओके, बा एटा को सिंपली दिया जाए SI और एम केस रे वाट. सिंबल होची W, सिंबल होची केते पिले W. ताले 1 वाट इक्वल टू केते लिखि परिबी पिले 1 वाट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय केते पिले 1 सेकेंड. 1 watt equal to 1 joule divided by 1 second. So electrical power is the consumption of electric energy per unit time by an electrical circuit. Understand? Then देखो पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कौन टर्म्स पाइले. इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट E इक्वल्स टू सिंपली VIT. केते पाइले पहले VIT इक्वल टू केते पाइलो I2RT इक्वल टू केते I2RT इक्वल टू V2/R इंटू T, V2/R इंटू T. ओके, ताहले मोर एक्सप्रेशन कौन आसी जीवो पावर रो. सो पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट P इक्वल्स टू okay E by T. So correspondingly when we divide the time with the energy expression, that will correspondingly changes to P equal to VI equal to I square R equal to V square by R. So this will be the different expression for electric power. P equal to VI or that is the I square R or equal to V square by R. Okay, corresponding unit कौन कहले पहले electrical power unit है तुम्हारा watt. ओके, बट मेनली जो आम यूज करूँ किलोवाट ना आमर आसला कौन मेगावाट, यही टाइप सिंबल आम यूज करूँ. ओके, किलोवाट है तुम 10⁻³ वाट्रे आसो, मेगावाट है तुम 10⁻6 वाट्रे आसो. ओके, लाइक दिस. ओके, बुझेगा पहले. एबे कौन मेजर करवा जो आम कहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आम ऑब्जर्व कर मीटर बोर्ड रे, इलेक्ट्रिक मीटर रे, सेठी इलेक्ट्रिक मीटर आम कौ गोटे सिंबल देखो से किलोवाट आवर रे मेजर होता है, किलोवाट आवर रे मेजर होता है. जनरली किलोवाट आवर दैट इज कॉल्ड द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, दैट इज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय एन हाउसहोल्ड. ओके, बाय इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर. गोटे कंज्यूमर केते एनर्जी यूज करुच्ची दैट मेजर्स बाय बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट बा ताको कहा जाए बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT. ओके, so as for board of trade unit BOT, that is the unit of electric power. Okay, as for board of trade unit BOT, unit of electric power, unit of power is taken as kilowatt hour. ओके, जब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट आम मेजर करवा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर केते आसीबो पिले किलोवाट आवर. ओके, ताले 1 किलोवाट आवर जतले मेजर करूछु, 1 किलोवाट आवर जो मेजर करूछु से केस रे हम केमते मेजर करबो तार वैल्यू. ओके, देखो पहले जनरली हम कहूचे 1 किलोवाट आवर जतले मेजर करछे सिंपली आसीला तमर किलो जेतु अछि 1000 वाट आवर.
1000 वाट आवर वाट टाक जब मन इन टर्म्स ऑफ जूल कन्वर्ट करी ओके W इक्वल टू जानी वाट इक्वल टू जूल बाय सेकेंड वाट इक्वल टू केते पिले जूल बाय सेकेंड ता माने 1 वाट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय केते 1 सेकेंड एंड जदि हम आवर टाको कन्वर्ट करे 1 इक्वल टू केते पिले ना 3600 सेकेंड आसिला 3600 सेकेंड ता माने एठी सब्स्टिट्यूट करबा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 इनटू वाट जगह करी केते पिले जूल बाय सेकेंड इनटू आवर को कन्वर्ट कर दियो दैट इज द 3600 सेकेंड ओके सो दैट इज 1 किलोवाट आवर इक्वल टू केते आसीबो पिले ना 36 इनटू 10 टू द पावर 5 जूल 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल ओके जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म रे ताको ऑब्जर्व करियो स्टैंडर्ड फॉर्म रे लिखिबा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू केते पाइले पिले 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल so 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule okay and the point thing is to remember that 1 kilowatt hour is called 1 unit okay जो तुम इलेक्ट्रिकल यूनिट जो इलेक्ट्रिकल यूनिट कह जाए जो मीटर तुम 1 यूनिट आसला 1 यूनिट माने कौन पिले जे तुम 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक तुम कंज्यूम कल केते इलेक्ट्रिक कंज्यूम करछो ना 1 किलोवाट आवर रो यूनिट मेजर करछो बा कंज्यूम करछो तेन 1 किलोवाट आवर को जनरली हमर जो इलेक्ट्रिकल जो मीटर अच्छी से मीटर ता कह जाए 1 यूनिट ओके मन कर जन मीटर आसला 35 यूनिट आसला तमन से केते इलेक्ट्रिकल यूनिट कंज्यूम करछि ना 35 किलोवाट आवर कंज्यूम करुछि ओके तेल तुम से कैलकुलेट कर पार जब आम घरे गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब लगौचे 50 वाट बल्ब से केते समय रन हेले आम केते यूनिट कंज्यूम कर पारिबा ओके बट प्रैक्टिकली आम जो मेजर करूँ पावर यूनिट को प्रैक्टिकली आम जनरली हॉर्स पावर मेजर करूँ ओके सो इफ वी टेक द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज टेकन एज हॉर्स पावर ओके प्रैक्टिकल यूनिट कौन कह जाए practical unit of electric power that is horsepower that is taken as horsepower okay and there is a relation of horsepower with the watt that is called 1 horsepower equal to 1 horsepower equal to 746 watt okay 1 kilowatt hour 1 horsepower equal to 746 watt okay so that will give the measure of electric power बुझेला पिले so this is all about for today's session okay so in next class we mainly discuss about EMF okay EMF internal resistance like this okay मन गोटे छोटिया प्रॉब्लम्स गोटे कर दउची ये पूर्व जो इलेक्ट्रिकल यूनिट ऊपर जो कैलकुलेशन करूचे तार ऊपर गोटे छोटिया प्रॉब्लम्स गोटे कर दउची मन कर आमे जो कैलकुलेशन करछे जे केते टाइम रे आमे यूज करले केमती टाइप रो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बा केमती टाइप रे आमे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करके पैसा कन्वर्ट करूचे ताको आमे केमती मेजर करबा मन कर एठी कोन देइची ना गोटे लैंप ओके मन कर गोटे इलेक्ट्रिकल बल्ब नेली दर पावर देइची 500 वाट ओके क्वेश्चन टाइप रो अछि ए 500 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स फॉर 10 आवर इलेक्ट्रिक मैन ओके ताको मैं केते समय रन करिसे ना 10 आवर रन करले फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंजप्शन फॉर 30 डेज यदि 30 डेज पर डे आम 10 आवर लेखे कनेक्ट करूचु पर डे में 10 आवर लेखे ताको रन करूचु 30 डेज आए रन करिचे 500 वाट रो बल्ब टी केते इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करिवो यदि 1 यूनिट रो कॉस्ट प्राइस अछि 3 रुपीस ओके कॉस्ट प्राइस केते अछि ना 1 यूनिट रो तुमर कॉस्ट प्राइस अछि पिले 3 रुपीस अछि
वन यूनिट कॉस्ट प्राइस अच्छी पे 3 रुपीज किंतु पे गोटे पॉइंट को जब ऑब्जर्व कर मुझे वन यूनिट वैल्यू केते कहली वन यूनिट को केते कहली वन यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर को कहली 1 यूनिट ओके से अनुसार आम मेजर करें जब गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब 30 डेज पर डे 10 आवर हिसाब रे 500 वाटर इलेक्ट्रिक बल्ब आसूची ताले से केते किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करिवो फर्स्ट एटा को मेजर करबा जे से केते किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करिवो तापर जो टर्म्स को हम किलोवाट आवर को यूनिट कन्वर्ट कर देबा यूनिट कन्वर्ट कर देले पर यूनिट हिसाब रे 3 रुपीस जदि हला पर करस्पोंडिंग यूनिट रो वैल्यू हमें मेजर करि परिबा बुझेला पिले ताहले कौन मेजर करबा हमें कह हमें मेजर करबा मेन केते इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होईची ओके पावर फार्मूला कौन कहली पावर इक्वल टू एनर्जी बाय केते पिले ना टाइम पावर कहली केते एनर्जी बाय टाइम ताले मते फास्ट मेजर करिया को पड़िबो जे केते एनर्जी से कंज्यूम करिची ओके ताले एनर्जी इक्वल टू केते पिले पावर इनटू टाइम एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम ता माने फास्ट हम मेजर करबा पर डे से केते इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करूची ओके जब मैं पर डे गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब 10 आवर 500 वाटर इलेक्ट्रिक बल्ब 10 आवर आम रन करूचे तब से केते एनर्जी रजू करिवो सो इन वन डे ओके अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड is equal to केते पिले ना 500 वाट रो इलेक्ट्रिक बल्ब 500 वाट रो इलेक्ट्रिक बल्ब केते आवर रन होची ना 10 आवर केते पिले रन हैला ना 10 आवर टाइम देछि तुम 10 आवर त माने केते पाइलो पिले 500 into 10 that is the 5000 watt hour ओके 5000 वाट आवर देखो पिले 5000 अच्छी 1000 जेहेतु अच्छे आपको किलो को कन्वर्ट कर दे पारिबी तो 5 किलोवाट आवर ताल से गोटे दिन रे ओके गोटे दिन से 5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करुच्ची जब आम गोटे किलोवाट आवर को 1 यूनिट वाली सिंबल दौचे ता माने मोर 1 डे रे केते एनर्जी कंज्यूम कला 1 डे रे से केते एनर्जी कंज्यूम करुची ना 5 यूनिट रो एनर्जी कंज्यूम करुची केते दिन पिला चलीची ना 30 डेज आफ्टर 30 डेज ओके टोटल एनर्जी ई टोटल इक्वल टू 30 इंटू केते आसला पिले 5 यूनिट 30 इंटू 5 यूनिट ओके तमाने टोटल एनर्जी तुमको जो कंज्यूम कला 150 यूनिट रो एनर्जी कंज्यूम करुची 150 यूनिट रो कंज्यूम करुची 30 डेज रे जदि 150 यूनिट रो कंज्यूम करुची गोटे यूनिट रो वैल्यू केते पिले 3 रुपीज आसूची ता माने टोटल कॉस्ट प्राइस ओके टोटल कॉस्ट प्राइस केते हिजबो ना टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू केते हिजबो पिले ना 150 into 3 that is 450 रुपीज ओके ता माने से यदि 1 मंथ इलेक्ट्रिक बल्ब टाक रन करे तो से केते रुपीज ताको दबा को पड़िबो 450 रुपीज दबा को पड़िबो बुझेला पिले तले एई टाइप रे तुम कैलकुलेट करि परियो जो तुम घरे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लागि छी से केते लेखाए पर डे रे यूनिट कंज्यूम करछि केते टाइम रन हेले बुझेला पिले ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन नेक्स्ट क्लास वी मेनली डिस्कस अबाउट द ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड potential difference or terminal potential difference okay thank you